Good morning, students. In previous lecture, we completed the one sentence answers. Now we are going to start 3-4 sentence answer. In 3-4 sentence, our first question is explain how forest prevents flood. एक्सप्लेन करना है कि फॉरेस्ट कैसे फ्लड से हमें प्रिवेंट करता है. आंसर इज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज साइड बाय साइड in a forest. There are large number of trees side by side in a forest. Large number of trees होते हैं forest में. The roots of the trees absorb the water and prevent it from flowing away. The roots of the trees absorb the water and prevent it from flowing away. Due to dense canopy of trees, rainwater does not directly fall on a soil. Due to dense canopy of trees, rainwater does not directly fall on soil. Root of trees also help in percolation of water into the soil. जो रूट्स ऑफ ट्री है वो हेल्प करती हैं इन परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल. ड्यू टू डेंस कैनोपी ऑफ ट्रीज, रेन वाटर डज नॉट डायरेक्टली फॉल ऑन सॉइल. ओके, रूट्स ऑफ द ट्रीज ऑल्सो हेल्प इन percolation of water into the soil. The floor of forest is covered with a layer of dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs and small herbs. The floor of forest is covered with a layer of dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs and small herbs. Due to this, the flow of water is controlled and not all rainwater flow off. Due to this, the flow of water is controlled and not all rainwater flow off. इसके कारण जो कंट्रोल हो जाता है वाटर के फ्लो में और रेन वाटर फ्लो ऑफ नहीं होता, बहता नहीं है, वो सब कहाँ पे चला जाता है, प्लांट्स के अंदर ही चला जाता है, जिसके कारण हमारे ग्राउंड में चला जाता है, राइट, अर्थ के नीचे चला जाता है प्लांट्स के थ्रू, जिसके कारण वो हमारी अर्थ पर ओके. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज साइड बाय साइड इन अ फॉरेस्ट. द रूट्स ऑफ द ट्रीज एब्जॉर्ब द वाटर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम flowing away. Due to dense canopy of trees, rainwater does not directly fall on soil. Root of trees also help in percolation of water into the soil. The floor of forest is covered with a layer of dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs and small herbs. जो फॉरेस्ट का फ्लोर है वो कवर्ड है किससे, डेड एंड डिकेइंग लीव से, फ्रूट से, सीड से, ट्विग से और स्मॉल हर्ब से. ड्यू टू दिस द फ्लो ऑफ वाटर इज कंट्रोल एंड नॉट ऑल रेन वाटर फ्लो ऑफ. इसकी वजह से वाटर कंट्रोल में रहता है और रेन वाटर फ्लो ऑफ नहीं करता, राइट. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिकम्पोजर्स. व्हाट आर the decomposers? Name any two of them. What do they do in the forest? तो decomposers के बारे में बताना है, कोई भी दो. What do they do in the forest? वो क्या करते हैं फॉरेस्ट में. Decomposers are the organisms which feed on dead bodies of plants and animals. Decomposers are the organisms which feed on dead bodies of plants and the animals. Certain fungi and bacteria act decomposers. Decomposers are the organisms which feed on dead bodies of plants
and animals. वो फीड किसके ऊपर, उनका खाना किस पे डिपेंड होता है, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स. वो सर्टन फंगाई और बैक्टीरिया है वो एक्ट करते हैं एज अ डिकम्पोजर्स, वो एक्ट करते हैं फंगाई और बैक्टीरिया. ओके, द डिकम्पोजर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट. जो डिकम्पोजर्स हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट में. They feed upon dead plants and animals tissues and convert them into a humus. They feed upon dead plants and animal tissues. Okay, फिर convert कर देते हैं into humus. From humus, nutrients are released and available to the plants. अब न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो गए और प्लांट्स को वो मिल जाते हैं. So for the removal of dead and waste matter from forest, they decompose them. इसलिए उन्होंने जो रिमूव कर दिया है डेड और वेस्ट मैटर को फॉरेस्ट में और वो डिकम्पोज हो गए हैं. जब वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं तब वो क्या हो जाते हैं, मतलब वो फुली डिकम्पोज हो गए हैं. ओके, और वही जो ह्यूमस है वो प्लांट्स और यूज़ कर लेते हैं, राइट, एज अ न्यूट्रिएंट. Next, explain the role of forest in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Explain the role of forest in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Answer is, there are large number of trees in the forest. There are large number of trees in the forest. During day, trees prepare food using atmospheric CO2 by the process of photosynthesis. वो क्या करते हैं, डे टाइम पे जो ट्रीज हैं फूड को प्रिपेयर करते हैं CO2 का यूज़ करके बाय द प्रोसेस ऑफ अ फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन इन अ एटमॉस्फेयर. CO2 को यूज़ कर देते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. सो एनिमल यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2 इन द प्रोसेस ऑफ अ रेस्पिरेशन. जब वो प्रोसेस करते हैं एनिमल्स रेस्पिरेशन का, ऑक्सीजन को ले लेते हैं और रिलीज करते हैं CO2. द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोर देन द रेट ऑफ अ रेस्पिरेशन. वो रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है ज़्यादा होता है रेट ऑफ अ रेस्पिरेशन. सो इन फॉरेस्ट फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट एंड रेस्पिरेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. इस कारण जो फॉरेस्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है, इसलिए दोनों प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं बिटवीन ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड टू मैनी प्लांट्स इन द फॉरेस्ट ग्रो. वो कह रहे इतने सारे प्लांट्स फॉरेस्ट में कैसे ग्रो होते हैं. आंसर इज, इन नेचर ट्री प्रोड्यूस इनफ सीड्स. इन नेचर में जो ट्री है वो प्रोड्यूस करते हैं इनफ सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं. द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग एंड सैपलिंग. अब वो जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का जो फ्लोर है उनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है फॉर द जर्मिनेट. सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, जिसके कारण वो ट्रीज में ग्रो हो जाते हैं. फॉर ऑल दिस सफिशिएंट वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम रेन. रेन से सफिशिएंट वाटर उनको मिलता है. ह्यूमस इज कॉन्स्टेंटली फॉर्म्ड फ्रॉम डेड मैटर्स एंड न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल. जो ह्यूमस है उनको लगातार मिलती है कहाँ से, डेड मैटर से, और उनको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल जाता है. क्लियर. इसके कारण फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं. यहाँ पे मेरे 3-4 सेंटेंस आंसर्स फिनिश हो गए हैं. नेक्स्ट हम
नेक्स्ट वीडियो में शुरू करें।